Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today's target is to complete case scenario number 25 and 26. In case you are new here, my name is Anshita and we have covered a lot of case scenarios and MCQs on this channel. So don't forget to check out the description box below. I've mentioned the link of playlist where you can find out all these videos. Also, apart from law audit, we are doing this series for law. So the link of the playlist for law MCQ booklet is also given in the description box below. Also, if you want to connect with me on Telegram and LinkedIn, please check out the description box below, right? So description box has all the relevant information that you are looking for. Let's proceed with case scenario number 25 today. Case scenario 25 is given on page number 192, right? Let's begin. Sankalp Edible Oil Limited is a public company. So company is a public company which has the business of manufacturing cooking oil. The company is in this particular business since last 25 years. तो काफ़ी पुरानी कंपनी है. The financial results of the company for the previous year financial year 1920 is as follows. Okay, so previous year 1920 की figures they have given us. Loans इतने थे, turnover इतनी थी, paid up share capital इतनी थी and net profit after tax इतना था. Right. Let's see इसका relevance कहाँ आएगा, किस लिए दिया हुआ है. For the year 1920, Messrs. Agam and Associates were the auditors of the company. The auditors found out significant deficiencies in the internal control and misrepresentation of amounts in the areas of trade payables. So सबसे पहला point पता चल गया, there are deficiencies in the internal controls. Secondly, the amounts of trade payables are not as they appear. There is some misrepresentation in that particular head. Okay. Now, therefore, the auditor issued a qualified audit report. Next year, the management did not wish to reappoint the same auditors and hence the board of directors recommended Miss Angi as the statutory auditor for financial year 2021 to the members of the company. ऐसा ही होता है, qualified report issue करी नहीं auditor ने, मैनेजमेंट चिढ़ जाती है, मैनेजमेंट चाहती है चलो हटाओ इसको, दूसरे ऑडिटर को लेके आते हैं. वैसे इन्होंने भी किया क्योंकि क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई थी इन द ईयर 1920. तो इस केस में उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर के लिए वील हैव सम अदर ऑडिटर. ना अदर ऑडिटर कौन है? मिस आंगी. ठीक है, लेट्स प्रोसीड. After the reappointment or after the appointment rather, Miss Angi went through previous year's financial statements, audit report, etc. and emphasized the understatement of trade payable. There was an understatement of trade payable balance as a significant audit risk. So the new auditor has identified the significant audit risk, which is that what is that significant audit risk? Understatement of trade payable. Now, the auditor set the materiality at 15 lakhs for conducting the audit of the year 2021. Okay, so this is the materiality level. Further, Ms. Angi is in the process to collect the samples or select the samples for testing so as to get the samples on which vendor balance reconciliations can be performed. She is considering the following for the same. So she is in the process of selecting the samples. किस लिए? Because she wants to test the samples and based upon that she is going to form an opinion or form a view on the entire population. यही हम करते हैं as per SA 530. ऐसे 530 में भी तो ये करते हैं, सैम्पलिंग के ऊपर, सैम्पल्स के ऊपर अपने सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करके देखते हैं. वट एवर इज द रिजल्ट वी जस्ट अप्लाई इट ऑन दी होल पॉपुलेशन की होल पॉपुलेशन पर भी यही रिजल्ट एप्लीकेबल होगा. सो इस बेसिस पर वी कम टू एन कंक्लूजन ऑन दी होल पॉपुलेशन. लेट्स सी व्हाट इज शी लुकिंग फॉर. शी इज लुकिंग फॉर सम शी वांट्स टू हैव दी सैम्पल्स जिस पर वो वेंडर बैलेंस रिकंसिलेशंस को परफॉर्म कर पाए. ठीक है. नाउ शी वांट्स टू आस्क अस कि वो ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं वेदर शी इज right or wrong. Now, major vendors where the confirmation balances agrees to the general ledger. Now, she is asking whether she should take the major vendors whose balances are already confirmed with the general ledger. Do you want to take the samples from them? Would you like to take? No, I would not like to take samples from this particular एरिया. बाय? बिकॉज द बैलेंसेज आर ऑलरेडी मैच्ड. तो यहाँ पर रिकन्सिलेशंस के रिकन्सिलेशन में सैम्पलिंग लेते वक्त तो यहाँ पर तो मिस्टेक मिलेगी नहीं. तो मिस्टेक मिलेगी नहीं तो ये तो लो ना लो बराबर है सैम्पल. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेंडर्स विच हैव हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद संकल्प एडिबल ऑयल लिमिटेड. तो बेसिकली जिसके साथ बिजनेस ज़्यादा हो रहा है तो उसके वेंडर्स के वेंडर का लेजर बैलेंस तो मैं बिल्कुल चेक करना चाहूँगी. नेक्स्ट इज वेंडर्स विद द बैलेंसेज ऑफ 15 lakhs और मोर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. 15 लाख से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो भी मेरे लिए रेलिवेंट है. 15 लाख से कम है तो वो भी मेरे लिए रेलिवेंट है. क्यों? क्योंकि अभी तो मैं सैम्पल सेलेक्ट कर रही हूँ. सैम्पल सेलेक्ट करने के बाद आई विल चेक कि कितने डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, कितने डिफरेंसेज आ रहे हैं. उसके बेसिस पर आई एम गोइंग टू सी वेदर इट इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ मटीरियलिटी और नॉट. तो अभी तो मुझे क्या करना है, मुझे रिकन्सिलेशंस
चेक करनी है उसके लिए सैम्पल सेलेक्ट करना है. तो बेसिकली आई विल टेक ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैच्ड है. जो ऑलरेडी मैच्ड है उसमें तो डिस्क्रिपेंसी मिलने ही नहीं वाली, तो उसको लेके क्या करना. तो इसीलिए हम ये तीनों पॉइंट्स मुझे तो रेलिवेंट लग रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट मुझे रेलिवेंट नहीं लग रहा है. लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है. As at 31st March 2021, the balance of two vendor as per company's general ledger and as per the balance of external confirmations which were received from the vendors are as under. So हमने कुछ external confirmations मंगाई. external confirmation SA 505 के हिसाब से मंगाई होगी. तो इस केस में आपने external confirmations मंगाई है. Let's see क्या हुआ है. तो बैलेंस एज पर द लेजर ऑफ सूची ग्राउंडनट सीड्स लिमिटेड वाज 15 lakhs इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, बट व्हेन वी कॉल्ड फॉर द कंफर्मेशन, द कंफर्मेशन सेज कि वो उसका बैलेंस उनकी बुक्स में आ रहा है 20 lakhs, विच मीन्स देयर इज एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ द सप्लायर. कितने से? 5 lakhs से. Secondly, the Nishi Sunflower Seeds Limited is a company, it's a vendor. हमारी बुक्स में उसका बैलेंस आ रहा है 65 lakhs, बट उनकी बुक्स में बैलेंस आ रहा है 80 lakhs. There is an understatement of 15 lakhs. Now, first सूची ग्राउंडनट सीड्स लिमिटेड के केस में लेट्स सी उन्होंने क्या रीजनिंग दी है. They are saying that the difference in the balance is due to one of the order received by the company. This order is under dispute as the company claims that the received raw material is of substandard quality. The consignment received was sent back to the vendor on 30th March 2021. So there is a dispute between the supplier and the customer. What they are saying is that the material supplied by the supplier was of not a good quality. That is why we have returned that particular good on the second last day of the end of financial year. So 30th March ko they have returned the goods. So they are saying that this is not the payable amount for us. So that is why there is a difference of 5 lakhs in this particular supplier balance. Let's move on to the next supplier, Nishi Sunflower Seeds Limited. The difference in the balance is due to, okay, I was checking whether the video is getting recorded or not, because yesterday what happened is I just spoke all the content of case study number 25 and 26, and at the end I realized that I did not switch on, or I did not on the recorder, because of which I have to speak it today again. So that is why I was just checking the recorder. This happens with us, okay? So yeah, मेरी stupidity थी, but ठीक है, चलो let's move on, let's not waste time. Nishi Sunflower Seeds Limited की बात करते हैं. The difference in the balance is due to the reason of two invoices of 10 lakhs and 5 lakh dated March 25th of 2021 and 27th of March 2021 respectively. So they are saying the reason for differences is because of two invoices. There were two invoices, one of 10 lakhs and one of 5 lakhs. Date क्या थी? 25th March and 27th March. लेकिन अकाउंट्स पेबल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से both the invoices were received on April 3rd 2021, that is after the year end, and therefore those were not recorded in the financial statements for the year ended 31st March 2021. Do you think कि अकाउंट्स पेबल एग्जीक्यूटिव का ये कहना कि बिल्स बाद में रिसीव हुए हैं इसीलिए हमने लाइबिलिटी को बुक नहीं किया, ये सही है? नो. व्हाट दे शुड हैव रादर चेक कि जो आपको गुड्स मिले हैं वो गुड्स कब मिले हैं, क्योंकि जिस दिन आपके पास गुड्स आ गए उस दिन आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी टू पे दी सप्लायर्स. तो यहाँ पर उसका ये कहना कि बिल बाद में आया है, इवन दो बिल की डेट पहले की है, तो हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर नहीं कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज बिल्स हैव बीन रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. द रीजनिंग बिहाइंड नॉन बुकिंग ऑफ सच invoices is incorrect. So that is why rather they should have checked when did they receive the goods. The day when they received the goods should be the day when the amount became payable to the supplier. So that is why this seems to be little incorrect. Let's see. Miss Angi took the samples to verify the trade payable balances which covered 30% of the population. तो sampling के लिए उन्होंने सिर्फ 30% of the population को ही cover किया है. Now during the audit she came across two errors amounting to 12 lakhs. So जितने उसने samples की collect करे उससे सिर्फ और सिर्फ 30% of the population is getting covered. तो ऐसे 530 की पूरी application यहाँ पर मुझे लग रही है जो लगने वाली है, क्योंकि ऑडिट सैम्पलिंग से रिलेटेड है वो. ठीक है, तो उसको क्या मिला जब उसने 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो सैम्पल्स लिए ना उसमें प्रोसीजर्स अप्लाई करे एंड उसको मिले दो एरर्स मिले 30% ऑफ द सैम्पल्स में. मतलब बेसिकली सारे सैम्पल्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं 30% ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज एरर्स? एरर्स का जो अमाउंट है वो 12 लाख रुपीज़ का है. लेट्स सी. 4 लाख की जो रीजनिंग है वो ये है कि there was one invoice which was not recorded due to weak inefficient control mechanism. So deficient in internal controls की वजह से 4 lakhs का अमाउंट मिस हो गया एंटर होने से.
Second was 8 lakh error was made by Mr. Samyak, an executive who came as the temporary replacement for 1 week in place of Miss Hitavi, who is permanent accountant of the company. The mistake was clerical in nature. तो यहाँ पे कह रहे कोई टेम्प्रेरी बंदा आया, उसने एंट्री नहीं करी, जिस वजह से क्या हो गया, 8 लाख का हमारा अमाउंट मिस हो गया. तो ये एरर्स मिले हैं इन दी सैम्पल्स. किसको मिले हैं? ऑडिटर को मिले हैं. अच्छा, लेट्स सी. अब अच्छा क्वेश्चंस आ गए हैं, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं. Now, which items should Miss Angi select for testing so as to get the samples on which vendor balance reconciliations can be performed? तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ सैम्पलिंग के अंदर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. वाई? बिकॉज इसमें तो ऑलरेडी मैच्ड है ना, तो गलती मिलने के चांसेस नहीं है. मैं सैम्पल्स क्यों सिलेक्ट कर रही हूँ? मैं सैम्पल सिलेक्ट करके ये देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है तो डेफिनेटली मुझे उस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए. नेक्स्ट 15 लाख का जिनका क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख से ज़्यादा, उसको भी कंसिडर करना चाहिए. एंड सिमिलरली जिसका 15 लाख से कम है, मुझे उसको भी कंसिडर करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हो सकता है ना 15 लाख तो मैंने मटीरियलिटी लेवल सेट किया है, वो मैंने एज अ होल किया है. अब अगर मैं 15 लाख से क्लोज, जिनका बैलेंस 15 लाख से कम का है, हो सकता है उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो, उस मिस स्टेटमेंट का जो कलेक्टिव इम्पैक्ट आ रहा है वो 15 लाख से ज़्यादा आ रहा है. या फिर हो सकता है उसका क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने 15 लाख से कम का शो किया है, बट एक्चुअल में वो 45 लाख था. तो यहाँ पर भी तो मेरा मिस स्टेटमेंट है ना, तो इसीलिए मैं ये सोच के नहीं उसके बैलेंसेस को सिलेक्ट करूँगी, ये सोच के सैम्पल्स नहीं लूँगी कि इसका क्लोजिंग बैलेंस मेरी मटीरियलिटी लेवल से कम है तो मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. अभी मैं फ़िलहाल क्या है, सैम्पल्स के लिए पूरी पॉपुलेशन को ओपन रखूँगी, उसमें से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कि कौन सी जगह पर मुझे कितनी कितनी चेकिंग करनी पड़ेगी. बट यहाँ पर सैम्पलिंग के लिए आपको ये इसको पूरे को ओपन रखना चाहिए, बिकॉज किसी में भी गलती हो सकती है. ऐसा नहीं है कि इस वाले में गलती होगी, इस वाले में नहीं होगी, ऐसा नहीं है. फर्स्ट वाले में गलती नहीं होगी ये श्योर है. क्यों? क्योंकि उनके बैलेंस कन्फर्मेशन हमारे पास आ चुके हैं एंड दे आर मैचिंग विद ईच अदर, राइट. सो तीनों मेरे क्या हो जाएंगे, दे विल बी अ पार्ट ऑफ माई सैम्पल्स. मैं इसमें से कुछ सैम्पल सेलेक्ट करूँगी. सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट. आई होप आपको रीजनिंग समझ आई है कि हमने ये क्यों लिया है. फर्स्ट वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर कोई गलती मिलने के चांस होंगे ही नहीं. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे चेक करना है कि वेंडर्स का जो बैलेंस है वो मैच कर रहा है या नहीं. अब फर्स्ट वाले में तो ऑलरेडी मैच कर रहा है ना, तो मैं उसको लेके क्या करूँगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर गलतियाँ हो सकती हैं. मुझे ये नहीं देखना कि क्लोजिंग डेट पर जो बैलेंस है वो मटीरियलिटी से ज़्यादा है या नहीं. अभी तो मुझे पूरे सैम्पल्स को ओपन रखना है, मुझे पूरी पॉपुलेशन को ओपन रखना चाहिए कि किसी में भी गलती हो सकती है. अब जिनमें गलतियाँ हो सकती है उसमें से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट सम सैम्पल्स एंड उस पर मैं प्रोसीजर्स अप्लाई करके चेक करूँगी कि मटीरियलिटी लेवल को से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, या उसके बेसिस पर आई एम गोइंग टू डिसाइड दी NT ऑफ माई सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. ठीक है यहाँ तक? Okay, let's move on to the next question. Question number 2. How can Miss Angi audit the operative effectiveness of internal control around accounting of trade payables? Trade payables की accounting को आपको चेक करना है कि जो trade payables की accounting हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उसके जो internal controls हैं वो क्या effectively operate कर रहे हैं या नहीं. तो जो भी accounting से related बात आती है ना, तो accounting चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक फेक या डमी एंट्री पास करके देख लो. उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ये एंट्री पास करी है वो कहाँ कहाँ जा रही है, किस तरीके से मूव हो रही है, क्या सॉफ्टवेयर किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, कौन ऑथराइज्ड बंदा है, कौन अप्रूव करता है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. कैसे? एक डमी एंट्री मार के. ठीक है, तो लेट्स सी इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं. यहाँ पर है रीकैलकुलेटिंग द एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स टू आइडेंटिफाई द बैलेंसेस विच में नॉट बी अग्रीइंग विद द ऑडिट एविडेंस. आपको लगता है कि आप एजिंग को रिकैलकुलेट करके अकाउंटिंग को चेक कर पाओगे? नहीं, इससे अकाउंटिंग थोड़ी ना चेक होगी. Select the samples from the supplier balance based on scientific random sampling approach and verify the third party evidence. क्या इससे आपकी अकाउंटिंग चेक होगी? इससे अकाउंटिंग थोड़ी ना चेक होगी. Input a fake purchase invoice into the client system to see if it is processed accurately. ये आपका एक तरीका हो सकता है कि आप क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ एंट्री मारोगे तो पता चलेगा ना ये कैसे रूट हो रही है, क्या एंट्री जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है. तो येस, दिस इज़ अ टेक्निक कि आप इससे चेक कर सकते हो. कैलकुलेट द ट्रेड पेबल्स डेज टू यूज़ इन द एनालिटिकल प्रोसीजर. क्या इससे आप अकाउंटिंग चेक कर पाओगे? नहीं, इससे अकाउंटिंग थोड़ी ना चेक होगी. सो दैट इज़ वाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस केस इज सी, राइट. आपको यहाँ सोचना था कि आपको ढूंढना क्या है. आपको इंटरनल कंट्रोल्स किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, आपको अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है. तो बाकी के सारे पॉइंट्स जो थे वो आपके अकाउंटिंग को थोड़ी ना हेल्प करेंगे आपको ये चेक करने में कि अकाउंटिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
What are the audit procedures that Miss Angi should perform to verify whether the payable balances of Nishi Sunflower Seeds are correctly recorded in the financial statements? So Nishi Sunflower Seeds के पास जाते हैं सबसे पहले कि वो कहाँ लिखा था. तो निशी सनफ्लावर सीड्स आपका यहाँ मेंशन था, जिसके अंदर 2 इन्वॉइसेस की बात हुई थी, जिसमें से वो कह रहे थे कि इन्वॉइसेस अप्रैल में मंथ में आए हैं, बट एक्चुअली इन्वॉइस की डेट जो थी वो मार्च की थी. तो इस केस में बताओ कि क्या अकाउंट पेबल एग्जीक्यूटिव का ये कहना सही था कि अप्रैल में आया है, तो इस केस में मैं उसको बुक नहीं कर सकता था मार्च में? नो, उसको चेक करना चाहिए उसको रिसीव कब हुआ है गुड्स, क्योंकि गुड्स के बेसिस पर ही तो डिसाइड होगा ना वेदर द अमाउंट इज पेबल और नॉट. सो दैट इज वाई वी नीड टू सी कि अमाउंट कब ड्यू हुआ है. So send a confirmation to Nishi Sunflower Limited to request for confirmation of the outstanding balance. So ये करके कोई फ़ायदा तो है नहीं. क्यों? क्योंकि तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उसमें डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से अब आप थोड़ी ना पता लगा पाओगे कि वो ठीक हुआ है या नहीं. वेरीफाई द बैंक पेमेंट्स फॉर द पीरियड पोस्ट 31 मार्च फॉर एनी एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस. देखो 31 मार्च के बाद अगर पेमेंट हो भी रही होगी तो क्या इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या वो अमाउंट जो था वो पेबल था या नहीं ऑन 31 मार्च? नहीं, इससे थोड़ी ना पता चलने वाला है. इससे तो बस ये पता चलेगा इवन ये अप्रैल मंथ का होता तो अप्रैल मंथ की हो सकता है ना, अप्रैल में उसको 4 अप्रैल को ड्यू हो रहा था तो उसने 5 अप्रैल को पे कर दिया. तो क्या इससे पता चला कि 31 मार्च को ये बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं? नहीं. तो ये मेरा पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहा. मुझे तो चेक करना है कि क्या पेबल बैलेंस सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, एज ऑन विच डेट, एज ऑन 31 मार्च. तो यहाँ तो उससे कुछ रेलेवेंस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलेगा इससे. Next, I review the listing of purchase order to confirm whether it pertains to current year 2021 or it pertains to next financial year. अब एक बात बताओ, परचेज ऑर्डर अगर मैंने परचेज ऑर्डर फरवरी में भी दिया था, ठीक है, तो क्या इससे ये कंफर्म हो गया कि मेरी 31 मार्च को इसकी लाइबिलिटी थी या नहीं? नहीं. अगर मैंने परचेज ऑर्डर 1 फरवरी को दिया था लेकिन मेरे पास गुड्स आने वाले हैं 4 अप्रैल को, तो क्या 31 मार्च को ये लाइबिलिटी मानी जाएगी जस्ट बिकॉज मैंने फरवरी में परचेज ऑर्डर इशू किया था? नो, मेरी जो परचेज ऑर्डर है उससे थोड़ी ना रेलेवेंस है गुड्स की डिलीवरी डेट से, रिसीट डेट से. तो यहाँ पर ये भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करने वाला. नेक्स्ट ऑप्शन, इंस्पेक्ट द गुड्स रिसीट नोट टू डिटर्मिन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल. ये मेरा पर्पस सॉल्व कर देगा. इससे मुझे पता चल जाएगा इस दिन गुड्स आए थे, इस दिन गुड्स आ गए, तो इसका मतलब मेरे लिए वो अमाउंट पेबल बन चुका है. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. What would be the proper course of action to be taken by Ms. Sangi for 2 errors amounting to 4 lakh and 8 lakh in the given scenario? तो अब उसने जो है पॉपुलेशन का 30% सिलेक्ट किया था, ठीक है, एज अ सैम्पल. उस पर उसने प्रोसीजर्स अप्लाई किए और उसको पता चला कि 12 लाख रुपए की गलती हो रखी है ऑन इन दोज पर्टिकुलर सैम्पल्स ओनली. तो अब एक बात बताओ, जब भी हम ऐसे 530 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम सैम्पल्स के ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे और जो भी हमारा व्यू, जो भी हमारी कंक्लूजन होगी ऑन दोज सैम्पल्स वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन दी होल पॉपुलेशन. हम मानिए पूरी पॉपुलेशन पे ऐसे ही काम हो रहा है. तो जब 30% पे 12 लाख की मिस्टेक्स मिली हैं तो क्या 100% पर आपको 15 लाख जो आपका मटीरियलिटी लेवल है उससे ज़्यादा की मिस्टेक्स मिलेंगी या नहीं? बिल्कुल मिलेंगी. चांसेस हैं कि नहीं? बिल्कुल चांसेस हैं. क्यों? क्योंकि अभी तो आपने 30% की चेकिंग करी है तो आपको 12 लाख का एरर मिल गया. 100% की करते तो डेफिनेटली वो 12 लाख से ज़्यादा का होता. ऐसे चांसेस हैं. तो इस केस में आप देखो कि क्या आपका अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा. लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड जस्ट डिसाइड. द टोटल अमाउंट ऑफ एरर इज बिलो द मटीरियलिटी एंड देयरफॉर इट शुड not be considered for further or for sorry the total amount of error is below the materiality and therefore it should not be considered for further work upon. Do you think this is correct? No. Why? Because materiality के लिए आपने सिर्फ वो 15 लाख की लिमिट तो देख ली कि 15 से कम हो रहा है, ये 12 लाख आ रहा है, बट ये सिर्फ 30% पे 12 लाख आ रहा है. अगर मैं इसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करूँ ना, वो करके इंटरपोलेशन जैसे हम करते हैं, एक्सट्रापोलेट करके करना पड़ेगा इस केस में. वाई? बिकॉज यहाँ पर हम 30% पे 12 है. तो बेसिकली अगर मेरा 12 लाख 30% पर है तो मेरा 100% पर तो 15 लाख से ज़्यादा ही आने वाला है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है वो मटीरियलिटी लेवल को एक्सीड कर रहा है. तो यहाँ पर वो मेरे लिए अमाउंट मटीरियल हो रहा है तो मैं उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी. Miss Angi should ask Sankalp Edible Oil Limited to adjust 12 lakh in the payable balance to rectify the same. आपको लगता है कि 12 लाख को रेक्टिफाई कर देगा तो आप 100% ऑफ द पॉपुलेशन पर ये ओपिनियन दे दोगे कि वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट है? नो. 30% में 12 लाख की गलती मिली है जो कि आपको आइडेंटिफाई हो गई तो आपने ठीक करा दी, लेकिन 70% पे तो आपने गलतियों को आइडेंटिफाई भी नहीं किया. इफ़ यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड देम, डू यू थिंक दे विल बी करेक्टेड? नो. तो जो बैलेंस आपका रिफ्लेक्ट हो रहा होगा एज ऑन 31 मार्च, वुड दैट बी करेक्ट? No, that would not be correct. There might be chances कि वहाँ पर material misstatements हो. Why? Because you have only corrected the 30% of the population. You have not seen कि
70% में वो एरर एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं. So that is why this is totally incorrect. Next is different set of samples representing the same amount should be selected to check whether the same errors are getting repeated. If it is not, then observation should be waived off. ये क्या कह रहे हैं, आप क्या करो, सेम अमाउंट की ना डिफरेंट सैम्पल्स लो और चेक करो कि क्या वो सेम गलती हो रही है. और एक बात बताओ, यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी ना कि सेम अमाउंट के सैम्पल्स में ही गलतियाँ हो रही हो सकता है आपकी बार कम वाले में हो रही हो सकता है ज़्यादा वाली में हो रही हो. तो अब वो कम ज़्यादा में किसी में भी हो सकता है, और उसकी वजह से जब मैं अपना एग्रीगेट मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को करूँगी, एग्रीगेट चेक करूँगी, तो एग्रीगेट हो सकता है 15 लाख से बहुत ज़्यादा जा रहा हो. तो यहाँ पर ये भी बोलना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा. Next is impact of errors noted in the audit of samples. Test of details should be projected and extrapolated across the whole population. यही तो करते हैं हम सैम्पलिंग के अंदर, यही तो करते हैं हम ऐसे 530 के अंदर. So that is why this particular answer is correct. जो भी आपका रिजल्ट आया है on the samples, you have to apply it on the whole population, and based on that you are going to give the opinion. Based on that you are going to form the conclusions, right? So this particular case, the correct answer would be D. I hope I have done justice to द केस स्टडी. आपको सब कुछ समझ आया हो. मैंने काफ़ी कोशिश करी कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट केस स्टडी, केस सिनेरियो नंबर 26. CA David was appointed as the statutory auditor of Growth Limited. Growth Limited क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में. Growth Limited was involved in retail and packaging business and had branches in 6 states of India, Mumbai being its headquarters. Now it had a policy to appoint different auditors for each branch. उनकी पॉलिसी थी कि हर एक ब्रांच के लिए डिफरेंट ऑडिटर्स को हम अपॉइंट करेंगे, जो भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हैं. एंड अ सेंट्रल ऑडिटर फॉर मुंबई हेडक्वार्टर्स. For the financial year ended 31st March 2020, all branch audit reports were received by Mr. C. David in a timely manner. बहुत अच्छी बात है. There was an increase in sales for all the branches except the branch of Kerala, where the sales declined by 17% in comparison to last year. काफ़ी ज़्यादा decline हुआ है. Hence, CA David requested CA Chinnaswamy, the auditor of Kerala branch, to share the audit working papers of Growth Limited's Kerala branch. Total turnover of Growth Limited was 17 crores. So total turnover कितनी है, 17 crores. But the turnover of Gujarat branch was 1.97 crores, out of which 1.25 crore was exempt supply under GST law. तो जब भी GST की बात आती है ना, तो ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज वाला चैप्टर लगता है एप्लीकेबल हो गया, ऐसा फील आ जाता है. तो लेट्स सी इन्होंने क्या पूछा हुआ है. CA David is also the GST auditor under GST laws of Growth Limited's head office. Now क्या आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर GST ऑडिटर बन सकता है? यस, बन सकता है. कोई नॉन कंप्लायंस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है. तो CA David is also the GST auditor under GST laws of Growth Limited's head office and all its branches. CA David was confused as to whether GST audit will be applicable to Gujarat branch as the turnover is less than 5 crore. So क्या आपको लगता है CA सही है? नहीं. क्यों? क्योंकि जो GST ऑडिट होते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी आप चेक करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है. तो एग्रीगेट टर्नओवर तो डेफिनेटली इनकी क्या है, ज़्यादा है. इनकी कितनी एग्रीगेट टर्नओवर थी, इनकी एग्रीगेट टर्नओवर थी 17 करोड़, जिसका मतलब है इट इज़ मोर देन 5 करोड़. सो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाती है, थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करती है, तो इस केस में हर एक ब्रांच पर दी GST ऑडिट इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल. ओके. Growth Limited has exported goods to UK worth rupees GBP 10,000. On date of filing the shipping bill, the exchange rate notified by CBEC was 98, whereas as per RBI reference rate it was 99, and at the time of receiving the money exchange it was 101. So if you know कि ये क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज आपकी फ्लक्चुएशन ट्रांजैक्शंस हो गई, जिसका मतलब है कि आपने अकाउंट्स के अंदर तो जो रेट दिखाया होगा वो 99 दिखाया होगा, विच इज़ एज पर RBI रेफरेंस रेट, एंड इन दी GST रिटर्न्स यू मस्ट हैव शोन इट एट 98. तो बेसिकली आपने सेल्स दिखाई होंगी 98 इंटू 10,000 इन योर रिटर्न्स एंड 10,000 इंटू 99 in your books. So there is a difference of 1 rupee on 10,000 GBP in case of this particular export. So there is a difference of 10,000. But आपको जो receive हुआ ना amount वो 101 रुपये हुआ है, ठीक है. Now all these transactions were appropriately recorded in the books of accounts and were verified by CA David. During the year, Growth Limited used its securities premium of 7 crores for writing off the unabsorbed depreciation of 2.5 crores and issue of bonus shares for 4.5 crores. Do you think ये सही किया गया है? No. क्या आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. All the provisions of Section 63 of the Companies Act
for issue of bonus shares and applicable rules in respect of issue of bonus shares were complied by Growth Limited. ठीक है. CA David also took a written representation which was certified by the company secretary employed by Growth Limited in regard to compliance of applicable provisions for usage of securities premium and thus CA David issued an unmodified report. उसने क्या किया, CS से सर्टिफिकेशन लिया कि भैया सब कुछ सही हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो भैया हमने क्या कर दिया, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी. तो क्या यहाँ पर उसने सही किया है? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम को चेक नहीं किया कि वो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के लिए यूज हुआ है, विच इज टोटली रॉन्ग. The company created a provision for doubtful debts amounting to 8 lakhs and presented that under the head short-term provisions under liabilities. यहाँ पर भी गलती कर दी. क्यों? क्योंकि आपको क्या करना चाहिए था, नेट ऑफ करना चाहिए था और डेटर्स में से माइनस करके दिखाना चाहिए था अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. CA David was confused with the presentation of such provision in accordance with Ind AS 37. Ind AS 37 भी यही कहता है. अभी confused है तो भैया बेकार ऑडिटर है बहुत. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. CA David was statutory auditor of Sabka Vikas NBFC as well. For the financial year ended 2020, net owned funds of Sabka Vikas were 300 crores. Out of 300 crores, 200 crores were given as loan. तो 300 करोड़ में से 200 तो उन्होंने लोन दे दिया. किसको दिया? टू डिफरेंट बिजनेस हाउसेज. Mr. Raj, chairman of Sabka Vikas NBFC, was very close friend of Mr. Shrewd. Mr. Shrewd has 3 companies under his management. Each company was provided a loan of 40 crores each. While verifying the compliance with prudential norms, CA David took written representations from Mr. Raj. Advocate Tane was a practicing advocate representing in the court of law. Tane and CA David agreed that Advocate Tane will recommend CA David in case of matters relating to finance and other matters, and CA David will recommend Advocate Tane in case of matters relating to tax litigations. Further, they also decided to share the profits with each other in relation to such assignments. So, यहाँ पर आपको professional ethics का chapter लगा रहे हैं ये. With the increased quantum, the auditor had to increase his office capacity. He purchased 10 office chairs, tables and office furniture from Growth Limited. Growth Limited का auditor था, वहीं से उसने क्या किया, office chairs purchase कर ली, table purchase कर लिया, furniture purchase कर लिया. The same were purchased with huge 90% discount under a clearance sale. तो वहाँ पर clearance sale लगी पड़ी थी, उसने फ़ायदा उठाया, 90% का डिस्काउंट चल रहा था, फटाफट से उसने फर्नीचर खरीद लिया. The purchase amounted to 9 lakhs, which was not more than the statutory audit fees of CA David. CFO of Growth Limited contended that as a result of this purchase, there exists a business relation between Growth Limited and CA David. Hence, CA David will be disqualified under Section 141(3) of the Companies Act 2013. What do you say here? देखो, अगर ऑडिटर ने अपना इन्फ्लुएंस के चलते ये परचेज करी होती और इतना हेवी डिस्काउंट लिया होता which was not in the ordinary course of business, then in that case the disqualification would have got attracted. But in this case, if you see, he has just taken the benefit of the clearance sale which was available for each and every person, that is for everybody, like, right? So there is, this transaction has been done in the ordinary course of business and not because of any influence. So that is why we cannot say that he is disqualified over here. ठीक है यहाँ तक? चलो, let's answer the questions. Based on the above facts, answer the following. In your opinion, will Gujarat branch of Growth Limited will be liable for GST audit under GST laws? तो yes, हमने इसका आंसर वहीं कर लिया था, irrespective of the fact whether its turnover is exceeding 5 crores or not. It is irrelevant. Why? Because aggregate turnover is exceeding 5 crores. तो जो आपके नो वाले ऑप्शन है ना, उनको तो फटाफट से हटा दो, एलिमिनेट. तो आपका सिर्फ yes वाले 2 ऑप्शन है जिनको आपको कंसिडर करना है. You have to choose amongst them कि कौन सा करेक्ट है. सिर्फ थर्ड ऑप्शन is yes, the overall turnover of Growth Limited is more than 5 crores. तो yes, overall आपकी ज़्यादा है, तो definitely you will have to get your branches covered under GST audit. Was the opinion formed by CA David in respect of usage of securities premium correct? No. सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन लेने से आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं. You will still be responsible. आपको एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल, यहाँ पे नेग्लिजेंस मत करो ना, प्रोफेशनल जजमेंट आपकी अप्लाई होनी चाहिए थी. इनफैक्ट आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए थी इस मामले में. तो ये आपने यहाँ पर तो बिल्कुल भी सही नहीं किया. तो आपका करेक्ट ओपिनियन था नहीं, तो ये आपके ऑप्शंस गलत हो गए. सीधा सीधा अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है विच ऑप्शन इज करेक्ट. नो, एज सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एडजस्टिंग द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. इसी रीजन की वजह से द रिपोर्ट इज इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है फॉर इशूइंग बोनस शेयर. तो बोनस शेयर्स वाला इशू नहीं था, मेन इशू वाज विद द एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. Right? Let's move on to the next question.
Question number 3, in case of Growth Limited, what will be the amount of adjustments to be made in turnover due to foreign exchange fluctuations in reconciliation statement of GSTR 9C prescribed in terms of Rule 83 of CGST Rules 2017. तो GSTR 9C के अंदर reconciliation जाती है, reconciliation of what? Reconciliation of turnover as per GST returns and as per books. तो आपने books में दिखाया था at the rate of RBI reference rate and आपने GST returns के अंदर दिखाया था as per the CBEC rate. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 1 रुपी एंड देयर वर टोटल 10,000 फॉरेन करेंसी. सो जिसका मतलब हो गया कि आपका 10K का क्या हो गया, 10K का एडजस्टमेंट होगा, जिसका मतलब क्या है कि आपको ये आपकी एनुअल टर्नओवर की जो रिकंसिलेशन जाएगी उसके अंदर ही आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा. अब यहाँ पर ही कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दे रखा था कि 101 रुपये था डॉलर का रेट, GBP का रेट जिस दिन उसको रिसीव हुई फॉरेन करेंसी. तो क्या ये रेट आपके लिए रेलेवेंट है? नो, दिस रेट इज नॉट रेलेवेंट. वाई? बिकॉज टर्नओवर का जो डिफरेंस निकालते हैं वो रिकंसिलेशन होती है बिटवीन द टर्नओवर ऑफ GST रिटर्न्स एंड टर्नओवर एज पर द बुक्स, नॉट एज पर व्हाट यू हैव रिसीव्ड. तो यहाँ पर आपकी जो ये 101 वाला रेट था दैट इज इररेलेवेंट एंड द करेक्ट आंसर इज 10,000. ठीक है, let's move on to the next question. Question number 4, in your opinion was the presentation of provision for doubtful debts correct in accordance with Ind AS 37? तो प्रेजेंटेशन नहीं सही थी, क्यों? क्योंकि आपको नेट करके अमाउंट दिखाना था, ये हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था. तो यहाँ पर येस वाले ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ नो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस. ठीक है, क्योंकि येस वाले तो वैसे ही ऑटोमेटिकली गलत हो गए. तो Ind AS 37 स्पेसिफाइज दैट सच प्रोविजन शुड बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, let's move on to the next question. What is the validity of CFO's contention for disqualification under section 141 subsection 3 and will CA David be disqualified? Do you think that CA David will be disqualified? No, he will not be disqualified. Why? Because the transaction was conducted under the ordinary course of business and there is no business relation which exist, right? So यहाँ पर आपका जो है contention valid वाले आपके जो भी options हैं वो eliminate हो जाएंगे. तो ये दो options आपके गलत हो गए. Now you just have to see two options, C and D. C option is contention of CFO is invalid but CA David will have to vacate his office. अरे contention गलत हो तो vacation क्यों करोगे? Just because you have purchased the goods at a 90% डिस्काउंट? नो, उसने सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट अवेल किया जो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंटेंशन ऑफ CFO इज इनवैलिड एंड CA David विल नॉट हैव टू वेकेट द ऑफिस एज देयर इज नो बिजनेस रिलेशन. करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. आई होप यू आर क्लियर विद बोथ दीज केस सिनेरियोज एंड आपको अच्छे से समझ आई होंगी. इन केस यू डिड, don't forget to give a big thumbs up to this video, share it with your friends, subscribe to the channel. Thank you so much for watching guys. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy and keep supporting. Bye.